हेलो फ्रेंड, दिस इज नीरज महाजन और हम लोग आज सॉल्व करने वाले मॉक टेस्ट पेपर ऑफ सीरीज 2 ओके ऑफ सीए फाउंडेशन। जो लेटेस्ट वाला आया है, दो सीरीज है ना, सीरीज 1 सीरीज 2। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सीरीज 2 एंड लेट अस क्विकली स्टार्ट। एंड इसमें तुम्हारा मैथ स्टैट्स एलआर है। सो एज ऑफ राइट नाउ इन दिस वीडियो पहले मैं स्टैट्स लूंगा फर्स्ट पार्ट, देन आई विल गो टू एलआर एंड आई विल गो फॉर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो पहले स्टैट्स देन एलआर एंड देन मैथमेटिक्स टू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो अकॉर्डिंगली यू कैन स्विच द वीडियो या फिर आप स्किप वगैरह कर दो। तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, चलो। ओके, सो मॉक टेस्ट पेपर 2 सीरीज नंबर तुम्हारा जून 22 का। आगे बढ़ते हैं, चलो। सो फर्स्ट डायरेक्टली बच्चों जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे रहेगा तुम्हारा स्टैट्स। ओके, रेडी? क्वेश्चन नंबर 60 बच्चों, अराउंड 60-61 या। लेट्स स्टार्ट बच्चों। ओके, रेडी? हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग हिस्टोग्राम, यू नो इट इज बच्चों फॉर मोड, है ना। जस्ट लाइक मीडियन के लिए वी हैव ऑगाइज, फॉर हिस्टोग्राम वी हैव मोड। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? मोड। दैट्स ओके, थियरी क्वेश्चन, दैट इज अ थियरी क्वेश्चन. Data are said to be so and so if the investigator himself is responsible for collection. The person who is creating the data is using it, so it is being created for the first time, so it is a primary data and a primary source. Okay everybody, 62 is A. 63, the frequency of class of so and so 20 to 30 in the following data is so and so. So class intervals क्या क्या है? 0 to 10, 10 to 20 so and so, up to 40 to 50. But we have cumulative frequency. Don't be stupid. इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्लास 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी 28 है ऑप्शन में। नहीं नहीं नहीं, इट इज क्यूमुलेटिव। सो अंडरस्टैंड, 0 to 10 का बच्चों फ्रीक्वेंसी इज 5 इज 5, 10 to 20 बच्चों इज 13 minus 5 8, ओके, एंड 20 to 30 इज व्हाट? 28 minus 13 is 15, राइट एवरीबॉडी? अगर चाहिए रहेगा तो यू कैन फाइंड अगले भी क्लासेस का भी, बट वी डोंट रिक्वायर इट। हमको पूछा है 20 to 30, so frequency is 15. It is LCM ना, less than cumulative. Check over here बच्चों, जो तुमको नंबर देखे रखे हैं, numbers given 5, 13, 28, 34, 38, you should know ये less than cumulative frequency है, इसलिए बढ़ते जा रहा है ना. So we reduce ना one after another. Okay, तो next class से हम पहले का निकाल लेते हैं, we get that class का frequency. 64, there were 200 employees in an office in which 150 were married. Total male employees were 160, out of which 120 were married. Alright, what was the female unmarried employees? कितने हैं? तो ये तुम्हारे पास theoretical data दिया है, presented in tabulation, tabular manner. तो 200 employees है total. So what are the categories? Male, female, married, unmarried. Okay, चलो I'm making the categories here. Male, female, total columns, married, unmarried and total यहाँ पर. Okay till here? Next one, so what do we have? Total how many we have? 200, है ना? Fine. Out of what बच्चों? 150 were married, so obviously 50 are unmarried, balancing figure. Total males were 160, so obviously females are how many? 40. So total males were 160, out of which 120 were married. So out of 160, 120 males are married. We can finish the table बच्चों. तो यहाँ पे तुम्हारा 40 आ गया और ये तुम्हारा 30 and this is what? 10. What is asked? Female unmarried बच्चों, female unmarried are 10. Answer is 10. 64 is B. Alright, आगे बढ़े. Next one. The quartile deviation from the following observation is so and so. QD. First of all बच्चों, हमेशा whatever is asked उसका तुमने पहले फॉर्मूला लिख दो. QD is what बच्चों? Q3 minus Q1 by 2. तो तुमको डेटा के लिए Q3 निकालना पड़ेगा, Q1 भी निकालना पड़ेगा. So first you have to do बच्चों what? Ascending order. Check the ascending order over here. सबसे छोटू कौन है इसमें? छोटू 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 is 10 I think. Okay, 10. Then check what do we have? 15. 16 do we have? No. 17 yes. 18 yes. 19 do we have? No. So we have what? 20. Correct? 21 do we have? No. So 22. 23 do we have? No. 23, 24, 25. 26, 27, 28. 29 do we have? Yes. 29. 32 and 34. Okay. As such कितने नंबर है बच्चों यहाँ पे? n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है अपने पास. ठीक है, तो अगर मैं Q3 निकालूं, Q3 का फॉर्मूला स्मॉल n into कैपिटल N plus 1 by 4th. ओके, स्मॉल n means क्वार्टल नंबर आस्क्ड, सो थर्ड क्वार्टल आस्क्ड. कैपिटल N means नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 11 ऑब्जर्वेशंस है, प्लस 1 अपॉन
fourth term. So 11 plus 1, 12, 12 into 3, 36, 36 by 4 is ninth term if I am not wrong. And ninth term out of 11 is what? ये 11 है, ये 10 है, so ninth is 29. Okay, therefore Q3 is बच्चों 29. Now we want Q1. Q1 same formula, so what? N into n plus 1. So small n is what बच्चों? Quartile number. First पूछा ना, so 1 into 11 plus 1 by fourth term. So 11 plus 1, 12, 12 by 4. Third term. And as per ascending order, third term क्या है? 17. Correct everybody? So 29 minus 17 by 2. देखो. 6 is the answer. QD is 6. Alright? हाँ बच्चों? Clear till here? If you want, you can quickly check the answers यहाँ पे. 61 is A. Alright? 62 A. 63 C. 64 B. 65 B. Alright, done. आगे बढ़ते हैं हम लोग. That was quite simple. Alright? SD of 66. First 5 consecutive natural numbers. First 5 natural numbers. Okay, so we know the formula. क्या है SD का? SD of first n natural numbers is n square root of n square minus 1 by 12. So root of कितना बोला है? 5 ना. So 5 square minus 1 by 12. So 5 square 25 minus 1, 24, 24 by 12 is 2, root 2. And our answer is what? Root 2. I think it will come to 1.41 something अगर चाहिए रहेगा तो. But answer is already given to us, so it is what? Root 2. आगे बढ़े. 67. If the profit of the company remains the same for the last 10 months, remains same बोला है, constant, then the SD of the profit बच्चों will be 0. भाई constant है तो कोई dispersion ही नहीं है ना. There is no dispersion if the numbers are constant. Okay till here? So no SD at all. SD is बच्चों in fact 0. Okay? Clear till here? 68 बच्चों, there is an error in the question. Looking at the options, otherwise we'll have to change the options. Okay? तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन में गलती है. ओके, अब ये तुमको पता नहीं होता, हमको पता रहता है. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द चेंजेस. ओके, ध्यान देना. अ बैट्समैन इन इज 20th नहीं है बच्चों, 12th है. 12th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 120. तो ध्यान देना बच्चों, 11 मैचेस लिख रहा हूं मैं एंड 12th मैच. प्लीज अंडरस्टैंड, ये अलग अलग चीज है ना. 11 मैचेस अब तक हो चुके हैं और उसे भाई ने बच्चों 12th मैच में कितना कमाया है स्कोर? 120 रन्स. डू वी नो हाउ मेनी रन्स हैज ही स्कोर्ड ओवर हियर? वी डोंट नो. पहले के 11 मैचेस में कितने रन्स ये हमको नहीं पता. बट देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 5. मतलब क्या बच्चों कि उसका यहाँ पे जितना भी रन्स था उसका एवरेज कितना आया, जो भी रहेगा, लेट अस से x है ना. बट 12th मैच के बाद एवरेज इज x plus 5. x क्या लिया मैंने? x, let us take it as x bar. x bar is, let us say 11 matches का average. Okay, 11 matches average, let us say take it as x bar. So the x bar after 12th match is x bar plus 5. x bar is what? Average of 11 matches. Okay, what is his average after 12th innings? Okay, this is actually, as I told you, there is an error over here. So please pay attention. I am breaking the question into two parts. Okay, I am breaking the question into two parts. ये 11 matches or 12 matches, please understand. So here N1 I am taking as 11 and N2 I am taking as 1. मतलब क्या? Total there are 12 observations. 12 observations कैसे? 12 times he has scored some runs. Okay, so I am making a group of 11 and a group of 1 only. Okay, 12 matches, understand that. N1, N2. Do we have this बच्चों x bar? No, we don't have. So I'm just calling it as x bar. 11 matches का average. Okay, everybody, please understand. But बच्चों x2 bar is 120. कैसे? Because he has scored 120 in one match. You use common sense. अगर मैंने तुमको बोला, if I say a person has played only one match and in that one match he has scored 120, in that case बच्चों what is the average? 120 only, because 120 divided by 1 is 120. So average of one match is 120. Clear till here? And combined average, do we know बच्चों? Combined average after 12th match.
will be x1 bar plus 5. Okay, what is combined average? Average of entire 12 matches will be old average x1 bar of 11 matches plus 5. Okay, चलो ठीक है. We know the formula of capital X bar or combined AM, n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. Okay, so capital X bar, that is what बच्चों, old AM plus 5 is n1 x1 bar, that is 11 x1 बच्चों, हाँ है ना, 11 x1 bar plus n2 x2 bar, n2 is 2 into 120, हाँ है ना, the whole upon n1 plus n2, मतलब 11 plus 1, that is obviously बच्चों 12. Clear? Now this 12 I'm taking cross multiplying. 12 x1 bar plus 12 5 are 60 equals to 11 x1 bar plus 120. Now x1 bar को लेफ्ट में लेके आओ, देखो बस एक ही बच जाएगा x1 bar equals to 120 minus 60 is 60. Answer is not 60. Why बच्चों? Because x1 bar was average of 11 matches, but we want बच्चों what? Average after 12 match. और उन्होंने बोल के रखा in the question they have given कि after 12 match his average was increased by 5, so it got 60 plus 5. Average is 65 और answer is 65. आगे बढ़े, let's go ahead everybody. 69. The sum of squares of deviations from the given values from their so and so is always minimum. AM से बच्चों minimum होता है. अगर absolute deviation बोला है, it is from median. अगर absolute deviation बोला है बच्चों, it is from median. अगर square of deviations बोला है, it is from AM. Okay. Next one, 70th. What when mean is 3.57, mode is 2.13, value of median is, बच्चों mean और mode यहाँ पे same नहीं है, तो ये तुम्हारा asymmetric distribution है. So we have some approximate relationship, है ना. तो उसके लिए बच्चों अपन के पास एक फॉर्मूला कौन सा है? mode equals to 3 median minus 2 mean. So इसमें देखो बच्चों mode is 2.13, 3 of median नहीं है हमारे पास, है ना, minus twice into 3.57. Clear till everybody? तो 2.13 प्लस हो जाएगा ना, अभी इसको भेज रहे हैं हम लोग बच्चों लेफ्ट में, ये भाई साहब को भेज रहे हैं हम लोग 3.57 into 2, that is 7.14, है ना बच्चों, is 3 median. Therefore median will be what? इसको ऐड कर दो 2.13 में, 9.27 divided by 3 आएगा 3.09. Find it all of you? Yes. चेक करें अगले 5 क्वेश्चन अपने आंसर्स के साथ, है ना. 66 था ना, 66 is D, is root 2. 67 is C. 68 like I said is also C, no problem. Yeah, we got it because I changed the question. It is not 20th match, it was 12th match. 69 is A and 70 was 3.09 A, correct. आगे बढ़े. All right. 71, not that tough. The mean of first 3 terms is 14. पहले की 3 वैल्यूज, 3 ऑब्जर्वेशन का बच्चों AM कितना है? 14. अगले वालों का बच्चों, अगले तुम्हारे 5 ना, चेक करो. Sorry, the mean of next 2 is 18. So N1 बच्चों is 3, उसका AM है 14. N2 है बच्चों 2 ऑब्जर्वेशंस, उसका AM is 18, है ना, इतना देके रखा है. So the mean of all 5, मतलब क्या किया, combined पूछा है ना. So capital X bar, combined AM is N1 x1 bar plus N2 x2 bar upon N1 plus N2. So 3 into 14 plus 2 into 18 upon 5, N1 plus N2. चेक करो कितना है बच्चों ये. So 3 into 14 M plus 2 into 18 M plus MRC divided by 5 is 15.6. Done till here? D, option D is correct. आगे बढ़ते हैं. All right. The standard deviation of a variable of x is to be 10. The standard deviation of 50 plus 5x is, भाई standard deviation is not affected by change of origin. तो 50 को मारो गोली, आया ना, but it is affected by change in scale. So 5 का आएगा बच्चों 5x, 5 into 10. Okay, मतलब x will be what? We'll replace that standard deviation of x ना, 10 बराबर 50. Answer will be what बच्चों? 50. आगे बढ़े.
QD is अगर बच्चों यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, इट इज वी आर टॉकिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके एवरीबॉडी, QD MD SD. मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तुमको शॉर्टकट देता हूँ या फिर एक रेशियो देता हूँ. इट इज 10:10:12 है ना. अब जो भी पूछा बच्चों QD और SD का पूछा है उसको मारो गोली, MD को मारो गोली. ओके, वी जस्ट कंपेयरिंग व्हाट QD एंड SD. तो ऑब्वियसली बच्चों रेशियो देखो ना 2:3 हुआ ना. सो QD इज 2/3 ऑफ SD. आई टेल यू बच्चों QD इज व्हाट 2/3 ऑफ SD. डन एवरीबॉडी, आगे बढ़े हम लोग. 74. The first quartile is 142. The semi-interquartile range is 18. Q1 बच्चों 142. Semi-interquartile range is QD. QD is बच्चों Q3 minus Q1 upon 2 which is given to you as 18. बराबर है. The value of median is कर लेंगे हम लोग इसको. Q2 पूछा है पर कर लेंगे ना. अगर Q3 निकाला we can do Q1 plus Q3 divided by 2 as Q2 and Q2 is median. बराबर बच्चों, आगे बढ़े हम लोग. चेक करो. Therefore Q3 minus 142 upon क्या को equals to 18 into 2 36. बराबर है. Therefore Q3 बच्चों कितना हो गया 36 plus 142 178. बराबर है. Now you have Q1 and you have Q3. तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, Q2 is that is median is Q1 plus Q3 divided by 2. 142 plus 178 divided by 2. चेक करो कितना आएगा. 160. Yes, answer is 160. Right? Done till you everybody. 75. Geometric mean of 842. 3 observation, be careful. So 8 into 4 into 2 का cube root चाहिए because 3 observations हैं. So cube root of 8 into 324 into 262 आया ना, 64 आया. Sorry 32 है. 32 into 2 64. It is not square root बच्चों, 8 मत लेना. So cube root बच्चों क्या आएगा 4 into 4 into 4 आएगा ना of 64. Basically your value of this cube root of 64 will be what 4. Done till here? Yes everybody. 248 के लिए बच्चों आंसर इज 4. चेक करें हम लोग बच्चों यहाँ पे 71 से लेके 75. 71 was D. Yes, 71 was बच्चों D. एक मार्क नहीं किया मैंने, was 50 ना. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर डी था. ठीक है, मैच हो रहा है. 72 was A, मैच. 73 is A, 74 B और 75 A. ठीक है, चलो अगला जाते 76 पे. A is 1/2, P of A दिख रहा है प्रोबेबिलिटी. B का 1/3 है. A इंटरसेक्शन B is 1/4. तो वैल्यू ऑफ P ऑफ A डैश मतलब A डैश A कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो पूछा क्या A डैश यूनियन B डैश इज नथिंग बट, अगर डी मॉर्गन यूज करोगे इट इज 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. तुम्हारे पास इंटरसेक्शन है, सो 1 माइनस 1/4 इज व्हाट 3/4. ऑप्शन बी. ओके. 77. फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब x दिया और f of x मतलब नथिंग बट p of x. फाइंड e of x. और e of x कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, समेशन x i p i, मतलब हम x और p को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी टेक टोटल. ओके, सो 1 into 1/2 is 1/2, 2 into 2/3 is what 2 into 1/3 is 2/3 and 3 into 1/6 is 3/6 is 1/2. तीनों को ऐड करेंगे हम लोग, चेक करो कितना आता है. 1/2 तो 1 आ गया और 2/3 is 67, so 1.67 आना चाहिए आंसर, है ना. 1/2 तो 1 आ गया, 2/3 is 0.67, so 1.67. Done. 78. A husband and a wife appear in an interview for 2 vacancies in the same post, है ना. दोनों को जॉब के लिए जाना है,
तो 2 वैकेंसीज है. The probability of husband selection is 3/5. Husband select होगा उसका chance 3/5. Wife will be selected is 1/5. The probability that only one of them is selected is मतलब क्या means what? If husband is selected but wife is not selected, or if wife is selected, husband is not selected. So if I take A as husband and B as wife, okay, so we want A but not B, है ना? Or means what? We will add probability that A husband is not selected but wife is selected. Obviously selection doesn't depend on each other, so they are independent events. Independent है then we can multiply. Okay, तो A का बच्चों सिलेक्शन का चांस 3/5. B का मतलब वाइफ का सिलेक्शन करना ही is what 4/5 प्लस A का नॉट सिलेक्शन इज बच्चों 2/5 and वाइफ का सिलेक्शन इज 1/5. So 5 was a 25 denominator, 4 3 is a 12 plus either be 25 or 2, that is 14/25. Option C is correct. Okay. 79. चलो. A bag contains 5 red 4 black balls. 5 red 4 black balls. A ball is drawn at random from the bag and put into another bag जहां पर ऑलरेडी कितने हैं 3 red and 7 black balls. Okay, तो यहां से बेसिकली एक बॉल ट्रांसफर हुआ. Then a ball is drawn from the second bag. तो उसका रेड आने का चांस कितना है? वो रेड ही चाहिए पर अपने को. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है, ध्यान देना. अब बैग नंबर 1 से रेड जाएगा एक बॉल या फिर ब्लैक जाएगा, बट बैग नंबर 2 से रेड ही चाहिए. सो वन सीन पॉसिबल इज कि बैग नंबर 1 से गया रेड एंड बैग नंबर 2 से भी गया रेड, गया मींस ड्रॉन. या फिर और बैग 1 से ब्लैक गया बट बैग नंबर 2 से तो रेड ही चाहिए. इज इट ओके? दिस फर्स्ट जो आर है दैट इज फॉर बैग नंबर 1. तो बैग नंबर 1 में रेड का सिलेक्शन का चांस कितना बच्चों 5/9 बराबर है. देन यू पुट दिस बॉल इन बैग नंबर 2 में डाला अपन ने. अब बैग नंबर 2 में बच्चों रेड कितने हो गए 4 हो गए और टोटल तुम्हारे 10 थे, 10 का बच्चों 11 हो गया. तो बैग नंबर 2 से रेड आने का चांस नाउ 4/11. दिस वाज वन पॉसिबिलिटी. हम उसमें ऐड क्या करेंगे बच्चों ये वाला. बैग नंबर 1 से बच्चों ब्लैक बॉल चांस, ब्लैक बॉल का सिलेक्शन इज 4/9. अब ब्लैक बच्चों हम लोग ने बैग नंबर 2 में डाला बट बैग नंबर 2 में रेड उतना ही है ना 3, बट तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 11 हो चुके हैं. तो दिस 20/99 प्लस 12/99 दैट इज 32/99. ऑप्शन ए इज करेक्ट. यस हुआ. 80. If x is a Poisson variate with parameter 1, parameter 1 Poisson बोला है, x follows Poisson with parameter m होता है ना, so m is 1. Then find the value कि वो 3 से ज्यादा है और 5 से कम है, more than 3 but less than 5. Poisson is always discrete, so more than 3 less than 5 बच्चों which figure is correct? P of x equals to 4 है ना. So Poisson e raised to minus m into m to the power of x upon x factorial. E raised to minus 1 into 1 to the power of 4 upon 4 factorial. E raised to minus 1 उन्होंने देख के रखा है, they have given you 0.36783. 1 to the power of 4 कुछ काम का है नहीं, it is useless. Okay, upon what 4 factorial is बच्चों 24. This comes to 0.0153. 0.015. Please be careful. 0.015. Okay, not 0.15. 0.015322625. All right. 81. I have tick mark कर दिया मैंने. The probability that a student is not a swimmer is 1/5. Then the probability that out of 5 students 4 are swimmers. तो तुम्हारा बच्चों बाइनोमियल हो गया because a person can be a swimmer or not be a swimmer. बाइनोमियल है. N is small कितने 5. क्वेश्चन किस लिए पूछा बच्चों? आर स्विमर्स ना, तो P को ले लो स्विमिंग के लिए कि हाँ P is for probability of swimming, तो 4/5 लेंगे हम लोग. करेक्ट. तो Q बच्चों क्या आ गया 1/5. अब देखो बच्चों आउट ऑफ 5 4 एग्जैक्टली 4 आर स्विमर्स. तो X फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना बच्चों. ओके, और बाइनोमियल का फॉर्मूला NCX into P raised to X into Q raised to N minus X. देखो P of X equals to कितना एग्जैक्टली 4 चाहिए हमको. N कितना है 5, so 5C4 into 4/5 to the power of 4 into 1/5 to the power of 1 बराबर.
तो तुम्हारा एग्जैक्टली मतलब उन्होंने कैलकुलेशन दे के नहीं रखा है, फॉर्मेट देख रखा है, विच मैचेस विद ऑप्शन नंबर सी। यस चलिए आगे बढ़े। 82 in a binomial distribution n is 9 and p is 1 by 3, x follows binomial with n बच्चों 9 and p 1 by 3. What is variance? Variance के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या बाइनोमियल में? npq. n is 9, p कितना बच्चों 1 by 3 and q is nothing but complement of p. q is balance of p. तो 1 by 3 p है तो q बच्चों 2 by 3 हो गया, 3 और 3 कैंसिल, तो आंसर तुम्हारा बच्चों 2 है ना। वेरिएंस कितना होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? हमेशा 1, दैट इज अ प्रॉपर्टी। ओके, तुम्हारा प्रॉपर्टी है। अगला वाला 84 फॉर अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन p of x equals to 0 is p of x equals to 2. Find e of x. e of x मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मतलब एवरेज, एवरेज मतलब m, तो x follows Poisson, no? So e raised to minus m into m to the power of x upon x factorial. So e raised to minus m into m to the power of 0 upon 0 factorial equals to e raised to minus m into m to the power of 2 upon 2 factorial बराबर ये तुम्हारा e raised to minus m, e raised to minus m कैंसिल, ये anything to the power of 0 as it is 1 है, 0 factorial भी कुछ काम का है नहीं, देखो m square is 2 पूछा गया बट m पूछा, so m will be बच्चों root of 2 है ना, so answer is root of 2 not 2. Done. All right. 85 नेम द डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे मीन इक्वल्स टू वेरिएंस, पॉइजन है ना बच्चों, m मीन आएगा पॉइजन में और वेरिएंस ही पॉइजन में m होता है, पॉइजन का एसडी याद है तो अगर रूट m होता है ना, सो 85 का आंसर बच्चों पॉइजन। बाइनोमियल में नहीं होता बच्चों, बाइनोमियल में मीन इज np और वेरिएंस इज npq, तो d इज नॉट करेक्ट। 86 if the difference between mean and mode is 33, mean minus mode, okay, then the difference between mean and median is, तो उसका बच्चों फॉर्मूला क्या है? mean minus mode equals to thrice of mean minus median। देखो बच्चों mean minus mode देख रखा 33 is 3 into mean minus median। उन्होंने क्या पूछा कि mean minus median कितना है, देखो mean minus बच्चों median कितना हुआ 11, कैसे 33 by 3, समझा everybody? 87 relative frequency for a particular class lies between 0 to 1 but not both inclusive, वो 0 भी हो सकता है नहीं, क्या 1 भी हो सकता है नहीं, ओके, तो आंसर बच्चों ए है नॉट बी, ओके, नॉट बोथ इंक्लूसिव, वो 0 हो सकता है नहीं बच्चों कभी भी, ओके, देयर हैज टू बी सम फ्रीक्वेंसी, ओके, और 1 भी पूरा पॉसिबल नहीं है, ओके, so answer is A over there, not B. Relative frequency याद है क्या था फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, तो कोई भी क्लास में फ्रीक्वेंसी नहीं है ऐसा कोई टेबल नहीं बनेगा, एज वेल एज एक ही क्लास में सभी फ्रीक्वेंसीज है ऐसा भी नहीं होगा, ओनली दैट केस 0 और 1 आ सकता है ना, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए बोथ इंक्लूसिव नहीं बोलते हम लोग उसको, ओके। 88 रेडी, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप आ जाए, मीट एट द पॉइंट नोन एज मीडियन, एकदम सिंपल टाइम पास क्वेश्चन है मीडियन, है ना। इफ द मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मार्क्स, ओके, मीन अलग है भाई am एंड cv ऑफ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 20 एंड 80 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वेरिएंस, वेरिएंस पूछा है, ओके, ध्यान देना, x बार दिया है मान लो 20 एंड cv का फॉर्मूला कुछ याद है, इट इज sd अपॉन x, am लिख रहा हूं मैं, into 100 and which the figure is given to you as 80, ये तुम्हारा am ही है ना। अब देखो पूछा क्या है, वेरिएंस पूछा है बट, तो ध्यान देना, सो sd अपॉन am कितना है अपने पास 20 into 100 equals to 80, देखो बच्चों sd सिंपली इसको निकाल दो चाहिए तो 80 by 10 which is 8, हाँ या ना, कुछ गलत आ रहा है क्या? हाँ हाँ ये 5 आया ना, मैंने किया नहीं, 5 बराबर है, हाँ सॉरी मैंने 5 को कैंसिल नहीं किया, तो 5, यस
10 और प्लस 30, 30 क्या है ये एस डी 16 है ना, एस डी 16 बट आंसर इज नॉट 16 क्योंकि वेरिएंस पूछा है ना, सो वेरिएंस विल बी बच्चों स्क्वायर 16 स्क्वायर 256 चेक करो राइट लियो डन 90 इंपॉर्टेंट और अलग क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसका आंसर बच्चों शायद आईसीआई ने गलत किया है बट विल चेक इट इन अ नॉन लीप ईयर वाला क्वेश्चन नहीं है वो मतलब कितने हो गए 365 डेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd संडे और 53rd ट्यूसडे और 53rd थर्सडेज तो अगर 365 डेज होगी तो अपने को पता है 52 होल वीक्स मिलते 52 तो 52 into 7 कितना हो गया 364 तो तुम्हारे 52 मंडे 52 ट्यूसडे 52 वेडनेसडे वो सब आने वाला है बस एक ही दिन एक्स्ट्रा बच जाता है ना 52 into 7 देखोगे 364 आता है एक दिन तुमको 53rd मंडे या फिर 53rd ट्यूसडे ऐसा मिलेगा है ना तो अगर सैंपल स्पेस है वो एक्स्ट्रा एक दिन के लिए इट विल बी फ्रॉम मंडे ट्यूसडे एक्सेट्रा बच्चों अप टू व्हाट संडे मतलब तुम्हारे एन ऑफ एस अगर मैं कहूं मैं 7 ऑप्शन है तुम्हारे पास है ना उन्हें बोला कि मान लो 53rd संडे या फिर ट्यूसडे फिर थर्सडे कितना हो गया तो तुम्हारे पास एज सच 3 ऑप्शंस है आउट ऑफ टोटल 7 ऑप्शन ओके सो प्रोबेबिलिटी बच्चों विल बी व्हाट 3/7 ओके कहां तक देखा अपन ने इसका आंसर में 76 से पेंडिंग है कर लेते फटाफट 76 is B 77 is C 78 is also C 79 is A 80 is A 81 is C 82 also C 83 A 84 A 85 B 86 C 87 A है 88 B 89 A 90 का बच्चों उनका ना आंसर गलत करके रखा है क्योंकि 3 ही ऑप्शन ओके तो अपना आंसर सही है डोंट वरी इट इज सी एक्चुअली ठीक है ना 4/7 नहीं आएगा 3/7 ही मैक्स चलो नेक्स्ट वन 91 इन अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तुम्हारा कौन सा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट r is 0.12 summation t square is 146 then the number of observed pair मतलब n कितना है तो तुमको फॉर्मूला याद आना चाहिए r का रैंक के लिए 1 minus 6 summation t square upon n into n square minus 1 अब r दिया कि उन्होंने हाँ 0.12 equals to 1 minus 6 into summation t square भी देख रखा है 146 upon n into n square minus 1 बराबर है अब बच्चों 6 into 146 कितना है 876 डिवाइड बाय n into n square minus 1 को मैं लेफ्ट हैंड में लिखे गया एंड 1 minus 0.12 is 0.88 चेक करो 1 minus 0.12 therefore n into n square minus 1 is 876 upon 0.88 जो आता है कितना बच्चों 995 अब तुमको यहाँ पे ट्रायल एरर करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही आता है तो तुम अगर ट्रायल एरर करोगे n विल बी बच्चों 10 परफेक्ट आंसर नहीं आएगा 990 आता है बट 9 8 और 7 तो नहीं आएगा सो 9 into अगर 9 ये लोगो 9 स्क्वायर कितना होता है 81 81 minus 1 80 80 into 9 आएगा 720 बिल्कुल भी नहीं ओके सो नजदीक वाला तुम्हारा बच्चों ऑप्शन कौन सा सही है 10 इन्होंने बच्चों इनफैक्ट जो r का वैल्यू थोड़ा सा और 3-4 डेसिमल में देते थे तो अपना आंसर परफेक्ट आता था तो दे हैव नॉट गिवन द डेटा ओके 91 का बच्चों आंसर डी 92 आगे बढ़े फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन n कितना बच्चों 10 नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 4 कंकरेंट डेविएशन का फॉर्मूला याद है तो r इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ऑफ मॉड 2c माइनस m अपॉन m तो नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन मतलब c बच्चों देख रखा है ना c is 4 और अगर याद है बच्चों m is how much 9 m is nothing but n minus 1 है ना what is the value of r तो प्लस और माइनस रूट ऑफ 2c माइनस m अपॉन m बराबर तो रूट ऑफ प्लस और माइनस 2 into 4 8 माइनस 9 अपॉन 9 तो 8 minus 9 minus 1 है तुम्हारा हाँ
और -1/9 का रूट। सो मेन आंसर नेगेटिव रहेगा क्योंकि तुम्हारा भी यहाँ पे न्यूमरेटर बच्चों नेगेटिव है। व्हेन 2c - m बच्चों इज नेगेटिव, योर आंसर विल आल्सो बी नेगेटिव। ओके, तो कौन सा सही है? 1/3 आएगा बिकॉज रूट 9 इज 3 ना, 1 का रूट इज 1 और 9 का रूट इज 3, so आंसर इज C. ओके, 93. Consider the two regression lines as 3x plus 2y is 26 and 6 plus y is 31. Find the mean values of x and y. Regression में हमको क्या पता है? Regression equation linear तो है, but they intersect at means. जो तुम्हारे दो लाइन है, दो इक्वेशन है, उनको अपन ने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो जो भी वैल्यू ऑफ x मिलेगा दैट इज x बार और जो भी वैल्यू ऑफ y मिलेगा दैट इज y बार। तो 3x plus 2y equals to 26 and 6x plus y equals to 31। अगर तुमने सॉल्व किया उसको साइमल्टेनियसली यू विल गेट जो भी तुमको वैल्यू मिलेगा x और y का दैट इज x बार एंड y बार। करना तुमको सॉल्व, हाँ साइमल्टेनियसली करके दो फिर, चलो फटाफट। आई कैन डू दिस वे ऑल्सो। मान लो मैंने इसको किया, इसको इंटू 2 -2, देखो क्या मिला मुझको, -12x -2y -62 बराबर है। तुम्हारा कितना आया ये, प्लस और माइनस चला गया और 62 में इससे तुम्हारा गया कौन, 26 नेगेटिव। x कितना है बच्चों 4। अब देखो y को डालो, देखते इधर, तो इधर भी डालो इसको। सो 3 × 4 है ना, प्लस 2y इज 26। सो 12 26 - 12 14/2 7। तो x इज 4 एंड y इज 7, मतलब x बार इज 4 एंड y बार इज 7। ये तुम्हारे फिर से थियरी 94 वाला। फॉर m/n मतलब m रोज एंड n कॉलम्स, टू वे और बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल दो ही होते हैं। कंडीशन इज ऑलवेज m + n और p + q, पर मार्जिनल हमेशा दो ही होता है। ओके, सो टू डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा आंसर है। 95. If the regression line of y on x is given by y equals to x plus 2, okay, तो y equals to a plus bx, अगर उनको फॉर्मेट याद है y on x के लिए, तो तुम्हारा b क्या रहेगा, b y x, ओके, y on x के लिए। kpcc देके रखा है 0.5, देन सिग्मा y स्क्वायर अपॉन सिग्मा x स्क्वायर कितना होगा। तो kpcc के लिए बच्चों r इज कोवेरियंस अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। बट अब तुमको क्या देखना है, वी कैन यूज फॉलोइंग फॉर्मूला ना। बी वाई एक्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स बराबर है। अभी तुमको इक्वेशन देकर रखा है x + 2, तो बच्चों b का वैल्यू कितना है, देखो ना, x के साथ जो चिपक के आता है, तो यहाँ पे x के साथ चिपक के कौन है, 1 ही है, कुछ नहीं है ना वहां पे। देखो बच्चों बी वाई एक्स इज 1, तो 1 इक्वल्स टू आर कितना बच्चों अपना देके रखा है 0.5 इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। देखो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स कितना आया 2, 1 / 1.5 is 2। अब वही चीज को अगर हम स्क्वायर करें, है ना, मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, आंसर विल बी 4। राइट लियो। नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडुकेशन, तुम्हारा इंडेक्स नंबर 4 होते हैं, कौन से वाले, यूनिट, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर। ओके, 97. Fisher's ideal formula, ideal for calculating index number satisfies factor and time, बताओ मुझको। Fisher's satisfies बच्चों फैक्टर रिवर्सल तो है ही है, प्लस एज वेल एज टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो बोथ आएगा A and C है, यहाँ पे करेक्शन कर लो, इट इज A and C। Purchasing power of money बच्चों is always reciprocal of consumer price index और price index number, okay, so reciprocal, so 98 का बच्चों आंसर क्या है A, right। सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल एकदम, फॉर द करंट ईयर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव, एग्रेसिव नहीं, एग्रीगेटिव है वो, इज हाउ मच, करंट ईयर प्राइस बेस ईयर प्राइस, सो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 है ना, दैट इज योर फॉर्मूला। तो समेशन P1 इज 250, 250, 500 और 300, 800 है ये 800। समेशन P0 इज हाउ मच 200, 300, 500। तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर इज समेशन P1 अपॉन समेशन P0 into 100, so 800 by 500 into 100 is how much, 160, okay। Last one of statistics, the cost of living index number in the year 15 and 18 is so and so, 2015, 2018,
CLI given to you 97.5 and यहाँ पे 115. The salary of so and so salary in 2015 is 1,95,000. हाउ मच एडिशनल सैलरी हमको देना पड़ेगा उसको अगर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखना है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1,95,000 इंटू 115 डिवाइड बाय 97.5 कम्स टू 2,30 ना तो उसको चल कितना आया सैलरी फिलहाल 1,95,000 तो एडिशनल उसको देना पड़ेगा 35,000. फाइनली ऑप्शन सी इज करेक्ट. 91 से फटाफट देखते हैं अपन. 91 का डी था, 92 का सी है, 93 का ए है, 94 का बी, 95 का सी है, 96 का सी, 97 का डी, 98 का ए एंड 99 का डी and 100 का C. So that's your covers your statistics का part. Okay.